Hello, aspirants. Welcome to Prelims Extra Week 4. So, let's quickly start. First news is with respect to rock waves. Okay, this is taken from Indian Express बिकॉज मैंने इसको स्किप करवा दिया था उस वक्त बट यहाँ पर सिर्फ हमें मेनली तो जानना था कि ये होती क्या एग्जैक्टली बट उसके अलावा भी कुछ और इससे रिलेटेड चीजें जो हम यहाँ पर देखेंगे. Researchers have recently developed a new tool to predict rock waves. The rock waves are large, unexpected, and dangerous ocean waves that can be more than twice the size of surrounding waves, and these waves are also called as freak, yeah, extreme storm waves or killer waves. Okay, so in simple language, ये जो normal waves होती है उनकी almost twice the size होती हैं, large, unexpected, and dangerous. उसी को हम लोग कहते हैं rock waves. Now, what caused these rock waves? It was caused by a combination of waves as well as currents, or by multiple wind-driven wave crests sticking up at a single point. They can also be caused by constructive interference or gale force winds. Direction, they may move either in the same direction or the opposite direction or at oblique angles to prevailing wind and wave motion. अगर अपीयरेंस की बात करें तो दे आर ऑफन स्टीप साइडेड, ठीक है, काफी बड़ी होती है तो काफी स्टीप साइड दिखता है. डीप ट्रफ्स एंड कैन लुक लाइक ए वॉल्स ऑफ वाटर. साइज एटलीस्ट 30 मीटर्स तक की हाइट तक जा सकती है. किसी भी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आती है, इवन ऑपोजिट टू द प्रिवेलिंग विंड एंड वेव्स. वेव्स जिस तरफ से आ रही हो सकता है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ जाए. यहाँ पर एक और कंसेप्ट निकलता है, सॉरी फैक्ट निकलता है, दैट इज ड्रॉपनर वेव. दिस इज द हाईएस्ट कंफर्म रॉक वेव एवर नोन. However, the most extreme rock wave occurred in the Pacific Ocean in 2020 was more than 3 times the surrounding waves. They pose a threat to ships, coastal infrastructure, human lives. Promise of AI, this program subsequently predicted about 75% rock wave जो tool develop किया है 1 minute in advance, and roughly 73% of rock wave could be predicted 5 minutes in advance. Okay, so इससे ultimately help क्या होगी? See again यहाँ पर क्या आ गया है कि artificial intelligence का ही एक और use आ गया किस चीज में? डिजास्टर मैनेजमेंट में. ओके, तो आप इसको कोट करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर कर ऐसा टूल बनाया गया है जो कि रॉक वेव्स को एटलीस्ट 75% को डिटरमिन कर सकता है विद 1 minute इन एडवांस, एंड 73% रॉक वेव्स को डिटरमिन कर सकता है विद 5 minutes इन एडवांस, ताकि हम लोगों को एक वार्निंग दे सकें, इवैक्यूएट कर सकें, या एटलीस्ट उनको इतना तो एक अलार्म साउंड करके एटलीस्ट उनको हिल्स की तरफ जाने को तो कहा ही जा सकता है. ऑलराइट, सो दैट इज अगेन मेंस में भी यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स में भी. ऑलराइट, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प प्रिडिक्ट दैम. राइट, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको काम आएगा. The many challenges of BRSR. Again, this topic was taken from business line क्योंकि आजकल इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी वो ना द हिंदू से आ रहे हैं ना इंडियन एक्सप्रेस से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंट सोर्सेज से ही आ रहे हैं. Okay. So what is this BRSR? It means business responsibility and sustainability reporting. फर्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन की. ठीक है, this is engaged in strengthening of reporting structure of sustainability and environmental, social and governance. IOSCO is an international body that brings together the world security regulators, that is India का SEBI, और हर कंट्री से रेगुलेटर्स यहाँ पे आएंगे, and is recognized as a global standard setter for financial market regulation के स्टैंडर्ड सेट करता है. ओके, कब बनी थी ये? 1983 में, जिस साल हमने वर्ल्ड कप जीता था. इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन. It is a standard setting body with more than 200 members representing 95% of world security regulators. Members include National Security Commission such as हमारा सेबी, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स का भी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अथॉरिटी, सर्विस अथॉरिटी यूके, सभी कंट्रीज के जो रेगुलेटर्स है, हमारा क्या है? सेबी, तो वो भी इसका मेंबर है. राइट, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहांस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, एंश्योर मार्केट आर फेयर एंड एफिशिएंट, प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक रिस्क. इसकी 4 रीजनल कमिटीज भी होती हैं, कुछ टेक्निकल कमिटीज भी होती हैं. दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, द ओनली थिंग इज हमें सिर्फ इसके बारे में जानना था कि इन्होंने जो रिपोर्टिंग वगैरह की है, तो यहाँ पर ये जो IOSCO है ये क्या है? ओके, सो इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज. ठीक है, 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया का सेबी. तो लास्ट ईयर एनवायरमेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो इस वेबसाइट से भी लिए गए थे, physics.org. तो यहीं पे हमें एक काम की चीज मिली, दैट इज इन्वेसिव स्पीशीज डिस्कवर्ड इन कोलोराडो रिवर इज केपेबल ऑफ वाइपिंग आउट इकोसिस्टम कॉजिंग कोस्टल डैमेज. ठीक है, तो ये इन्वेसिव स्पीशीज क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. नाम है ज़ेब्रा मुसल.
Recently, an invasive species discovered in Colorado River poses a threat to ecosystem and can cause extensively costly damage. Now, can you tell me this Colorado River? ये कहाँ पर है? किस country में है? ये zebra mussel. These are invasive fingernail-sized mollusks native to fresh water in Eurasia. Their name come from the dark zigzag strips on each shell. ठीक है, मैंने यहाँ पे फोटो नहीं लगाई है उसकी, वो अगर आप देखना चाहें तो खुद देख सकते हैं। दो तीन बातें याद रखनी होती है। फर्स्ट इज कि यस इट इज एन इन्वेजिव, सेकंड इज कि ये नेटिव कहाँ का है, तो इट इज नेटिव ऑफ ईस्टर्न यूरोप। लाइफ स्पैन 2 से 5 साल ही होता है, ज्यादा नहीं होता, और यूरोप में मिल रहा है तो टेम्परेट क्लाइमेट को ही सूट करेगा। दे फीड प्राइमरली ऑन फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन बट ऑल्सो बैक्टीरिया एंड टेट्राइटस। Yeah. They can be seen only with microscope and they float freely in river water. A single female mussel can release up to million baligers a year. Okay, इसलिए invasive कह रहे हैं इसको। The mussels multiply rapidly once they are connected to surface and can clog pipes, drains, pumps, etc. No species in western US has evolved to eat the mussels. ठीक है, इनको कोई नहीं खा पाता है। Threat, it can wipe out entire aquatic ecosystem, cause millions of dollars in infrastructure damage. It can obliterate ecosystem by eradicating basic food sources other species rely on. Removal क्या है? There is no effective way to remove the mussels from a river once they are established. So that was the second topic. Third topic पे चलते हैं. Revision of rate of central financial assistance for biomass pellet manufacturing units under biomass program component of National Bioenergy Program. पहले प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। नेशनल बायो एनर्जी, द गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस रेट्स ऑफ फॉर बायोमास पैलेट्स मैन्युफैक्चरिंग अंडर नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट रेट प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पर। द प्रोग्राम एंडेवर्स टू प्रमोट बायो एनर्जी एज अ सस्टेनेबल एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? तो ऑब्वियसली न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेटअप किए जाएंगे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, जैसे कि गुजरात में किया गया, एक प्रॉपर एक पूरा एक पेट्रोल पंप जैसा भी बना दिया गया है जहां से फुली आप बायोगैस ले सकते हो और वो पूरी की पूरी नेचुरली बनाई गई है। ओके, बायोगैस, बायो सीएनजी, पावर प्रोड्यूसर ऑफ सिनगैस from urban industry and agriculture waste or residue. The program aims to establish biomass briquette pellet manufacturing plants and support the non-Basaj biomass concentration cogeneration projects in the country. एम यही है टू हार्नेस बायो एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. It seeks to promote the use of biomass resources to generate energy, thereby reducing dependence on fossil fuels and mitigating climate change. Components तीन हैं मेजरली, और वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, बायोगैस प्रोड्यूस की जाएगी, बायो सीएनजी, पावर जनरेशन फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सेकंड इज बायोगैस प्रोग्राम, ये यूज किया जाएगा कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, व्हीकल फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं आप गुजरात का, जो हमने न्यूज़पेपर में भी देखा था। थर्ड वॉज सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यहाँ पे प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा हमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोजेक्ट डेवलपर्स एंड सर्विस चार्जेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्पेक्शन। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यू स्ट्रेन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम कुड बी प्रॉमिसिंग प्रोबायोटिक फॉर फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। स्ट्रेन MCCO 200, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। Scientists have discovered a new strain of lactic acid bacterium with potential for broader probiotic use through collaborative genome analysis. Genome analysis is the study of organisms genome और a complete set of genetic information, gene, genome, chromosome, ये सब मैंने आपको prelims revision series में clear कर दिया था। ये जो strain है MCCO 200, it identifies as Streptococcus thermophilus, ये एक प्रोबायोटिक बैक्टीरियम होता है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द डेयरी प्रोडक्ट। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट से ही इसको आइसोलेट करके बनाया गया है। Recent finding, it demonstrates several health promoting traits such as surviving gastrointestinal transit, adhering to intestinal mucosa, exhibiting antioxidant, anti-hypercholesteromic activities. ये सारे इसके benefits हैं। First is probiotic efficiency. It withstands the harsh condition of gastrointestinal tract, gut health, इंप्रूव करेगा आपकी प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल विटामिन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ओके, तो सिर्फ अगर आपको याद रखना है तो MCCO 200 क्या है, देखिए कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, तो ये हम फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सभी पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर सोर्स बनता है हमारे प्रोबायोटिक्स का। न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य अनाउंस फॉर माइनर्स, जॉब देना बात की बात है। ठीक है, जॉब सरकार इनको बाद में देगी, पहले उनको इनके पेंशन की ज्यादा चिंता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की। ओनली थिंग इज कि बस पेरेंट्स की सेविंग दूसरी तरह डाइवर्ट करनी है।
It has proposed a new pension scheme Vatsalya for the minors. आप सोच सकते हैं पेंशन स्कीम बनाई जा रही है माइनर्स के लिए. The scheme enabled parents and guardians to start a national pension scheme for minors until the child turns 18. The scheme offers families a systematic approach to ensure the future financial security of their children and contribute towards retirement savings. Okay, बच्चों के रिटायरमेंट सेविंग के लिए भी पेरेंट्स जोड़ेंगे. All parents and guardians, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, एनआरआईज हो या ओसीआई हो, they all are eligible to open an NPS Vatsalya account for their minor children. प्रमोट करना चाहते हैं इसके थ्रू सेविंग हैबिट्स इन द चिल्ड्रन. जॉब्स का पता नहीं, एग्जाम्स का पता नहीं, ओके, बट बच्चों को एनकरेज किया जा रहा है सेविंग्स करने के लिए, उनके रिटायरमेंट के लिए. So this is total shit. This budget was actually a total nonsense. You ask to any expert, they will say total nonsense budget. Anyway, NPS Vatsalya account opened when a child is a minor allows significant accumulation for retirement with 60% available for withdrawal at the retirement. The scheme instills financial responsibility, converting to standard NPS account at 18, allowing independent contribution. It provides a structured way for families to secure their children's financial future and build a retirement corpus. अब मैं आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम इन दोनों में फर्क बता चुका हूं, पहले इसके नोट्स पे दे चुका हूं. ठीक है, अगर ये दोनों आपको क्लियर है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम सारे नेताओं पे लागू होती है, ये वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही ले रहे हैं. न्यू पेंशन स्कीम ये 2004 के बाद से जितनी भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, अभी तो रिटायर हुए भी नहीं होंगे जो 2004 में वर्कफोर्स में आए थे, अभी 20 ईयर्स ही हुए उनको. जब ये रिटायर होंगे तो इनको न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा. हालांकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी वगैरह में है उनको तो न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से ही मिल रहा है और बहुत कम पेंशन आती है. कई जगहों पे तो 1500 2500 इस तरह की पेंशन आती है कि सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाए. इसलिए हमेशा डिमांड उठती रहती है कि हमें वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करो. बट अटल जी की सरकार ने क्या किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम पॉलिटिशियंस के लिए, सारे एमपी एमएलए ये सब ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं अभी तक, लेकिन सारे ब्यूरोक्रेट्स आर्मी वाले और जितनी भी सरकारी नौकरियां उन सब को डाल दिया गया न्यू पेंशन स्कीम में. ठीक है, तो हमारे देश में इक्वालिटी इज रियली मिसनोमर. ठीक है नहीं एग्जैक्टली. पंचमासली लिंगायत, अब देखिए लिंगायत सेक्ट के विद इन भी काफी सारे सेक्ट्स हैं, क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे हैं इंक्लूजन ऑफ द कम्युनिटी इन 2A रिजर्वेशन कैटेगरी इन बेंगलुरु. ये कर्नाटका ने अपने लेवल पर बना रखी है 2A कैटेगरी 3A कैटेगरी रिजर्वेशन की. ठीक है, तो ये डिमांड कर रहे हैं हमें 2A रिजर्वेशन कैटेगरी में डालिए ताकि और ज्यादा बेनिफिट मिल सके. लिंगायत होते क्या है, ये एक शिवलिंग, ठीक है, वैसे शिव जी के भक्त होते हैं, एक शिवलिंग जैसा कुछ अपने गले में पहन के रखते हैं. When they received during the initiation ceremony. They are followers of 12th century philosopher Sant Baspanna, who started the anti-caste movement that rejects the orthodox ritualistic Hindu practices. They are strict monotheists. उनका मानना है कि एक ही भगवान है, that is Lord Shiva. Lingayats had been classified as a Hindu subcaste, that is Veer Shaiva Lingayats. ठीक है, जबकि बीच में इन्होंने डिमांड किया था कर्नाटक सरकार से कि हमें एक अलग ही रिलीजन कंसिडर किया जाए हिंदुइज्म के बाहर. इसके कई सबसेक्ट्स हैं, लाइक पंचमासली, गनिगा, जनगमा, बंजीगा, रेड्डी लिंगायत, सदर, नोनाबा, गौड़ लिंगायत. All these subsects practice the same ritual at the time of birth, wedding and death. For instance, dead are buried in sitting position among lingayats. ठीक है, यहाँ पे अगर कोई मर गया तो उसको सिटिंग पोजीशन में बरी किया जाता है. Member of the community carry the Ishtaling suspended in a silver box around their neck. ठीक है, Lingayats believed to be a single largest caste group in Karnataka, account for nearly 17% of the state population. इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इनको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं कर पाती. करेंटली इनको 3B कैटेगरी में डाला गया, ये चाहते हैं कि हमें 2A कैटेगरी में डाला जाए. इनकी बात कर लेते हैं. पंचमसली लिंगायत, इट इज अ सबसेक्शन विद इन लिंगायत कम्युनिटी एंड दे आर ऑफन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एज वेल एज कम्युनिटी सर्विस. They are demanding 2A category reservation under OBC list. In 2A category reservation, these communities will get preferential reservation of 15% in government jobs and education institution. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मोस्टली ये लोग हमेशा एग्रीकल्चर से जुड़े रहे या फिर कम्युनिटी सर्विस में एंगेज रहे, तो उतना ज्यादा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाया, उतना ज्यादा जॉब और इन जगहों पर उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी. ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे रह गए, इसलिए उनको लगता है कि हमें 2A कैटेगरी में रखिए, 15% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए प्रेफरेंशियली. There is a demand that community be identified only as Lingayat and not as Veer Shaiva Lingayat in caste certificate. As per Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Lingayat, Buddhist, Jain, Sikhs are included among Hindus.
इनके सेपरेट नहीं है, ठीक है, सेपरेट लॉस नहीं है इनके लिए। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है बुद्धिस्ट, जैन, सिख एज माइनॉरिटी रिलीजन, बट लिंगायत रिमेन अनरिकग्नाइज अंडर ए सेपरेट रिलीजियस स्टेटस। गवर्नमेंट का कहना है कि आपको सेपरेट रिलीजन नहीं, आप तो शैवाइट हो, शिव के फॉलोवर्स हो, तो आप हिंदुइज्म की डेफिनेशन में ही आते हो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट रिलीज ए बीटा वर्जन ऑफ नेशनल डिजिटल नेशनल एड्रेस करेक्ट। ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल था। डिजी में काफी सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो उसमें एक और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, डिजी लॉगर हो गया, अब तो कोविन प्लेटफॉर्म आ गया था, यूविन प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है, तो उसी में एक और ऐड कर लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी शुरुआत की है बीटा वर्जन ऑफ डिजिपिन, दैट इज डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, इंटेंडेड एज परमानेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेशनल एड्रेसिंग। ठीक है, क्योंकि अब ये आपका होगा एक परमानेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल नॉट चेंज विद चेंजेस इन द नेम ऑफ द स्टेट, सिटी, लोकेलिटी और चेंजेस इन द रोड नेटवर्क। ये 16 अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स यूज करेगा। इस तरह की चीजें पूछी गई थी आधार के रिस्पेक्ट में एक बार, ठीक है, इवन पिन कोड भी पूछे गए थे कार्ड्स के रिस्पेक्ट में। The first character of the digipin will identify one of the 16 regions, and the entire country will be first divided into 16 regions, that is 4 by 4, or including, remember this point, including maritime EEZ of 200 nautical miles भी, ठीक है, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। फिर इस कोड को यूज किया जाएगा फॉर ऑफलाइन एड्रेसिंग रेफरेंस टू एनी स्पेसिफिक लोकेशन विद इन डिजिपिन सिस्टम। It will provide address for Indian assets in the sea, such as oil rig, future artificial and island, etc. It will act as a pillar of geospatial governance, leading to enhancement in public service delivery, faster emergency response, and logistic efficiency. It will serve as an addressing reference system using a logical naming pattern to provide directional properties for accurately locating addresses. Digipin is proposed to be fully available in public domain and can be easily accessed by everyone. It can be used for emergency rescue operation and national disasters such as floods. बाकी वो सिर्फ एक फॉर्डर मटेरियल की तरह ही आपको काम आएगा, उतना ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 गोल क्या है? ग्रीन मोबिलिटी को एनकरेज करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडॉप्शन बढ़ाना है। कौन लेकर आया ये? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज रिसेंटली लॉन्च इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम टू बूस्ट ग्रीन मोबिलिटी एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है। बूस्ट किया जाएगा एडॉप्शन ऑफ 2 व्हीलर एज वेल एज 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर कमर्शियल पर्पस। लॉन्च की गई है मार्च 24 में, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की है। इंप्लीमेंटेशन पीरियड होगा अप्रैल से लेकर जुलाई तक का। टू इंप्रूव द सेल ऑफ 2 and 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989। ठीक है, इसके अलावा अप टू 10,000 विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच 2 व्हीलर, अप टू 25,000 फॉर 3 व्हीलर एंड 50,000 फॉर ईच 3 व्हीलर, लेकिन लार्ज वाला, ठीक है, थोड़ा बड़ा। इसके अलावा तो फिर इस स्कीम में और फेम 2 में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है। इसमें सब्सिडी कितनी मिल रही है? 10,000, वहां फेम 2 में मिलती है 22,500। इनिशियल परचेज कॉस्ट हायर ड्यू टू लोअर सब्सिडीज, यहाँ पे कॉस्ट लोअर होती है ड्यू टू हायर सब्सिडीज। इम्पैक्ट क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग पर? इट विल इंक्रीज द कॉस्ट प्रेशर, हाउएवर इन फेम इट विल रिड्यूस द कॉस्ट प्रेशर। New centrally sponsored scheme for skilling announced as fourth scheme under Prime Minister package। ये 3 स्कीम हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? टॉप 500 कंपनीज के साथ इंटर्नशिप कराई जाएगी, राइट। करीब 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा ओवर 4 ईयर पीरियड। अब इन 3 के ऊपर एक फोर्थ स्कीम और ले आए जिसमें ये कह रहे हैं कि हम और ज्यादा लोन देंगे बच्चों को स्किल सीखने के लिए। ठीक है, लोन पहले 1.5 लाख का दिया जाता था, अब दिया जाएगा 7.5 लाख का, ताकि स्टूडेंट्स और अच्छे कोर्सेज में एनरोल कर सके। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि सेंट्रल स्टेट दोनों को शेयर करना होगा यहाँ पे कॉस्ट फॉर स्किलिंग द यूथ इन द बजट। इट इज एन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्कीम फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक कोर्सेज इन स्किल डेवलपमेंट अलाइंड विद नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन पैक्ट। ड्यूरेशन क्या होगा कोर्स का? कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं रखा है। मिनिमम लोन अमाउंट कितना दिया जाएगा? 5,000। मैक्सिमम कितना जाएगा? 1.5 लाख का। इसी को बढ़ा के अब 7.5 लाख कर दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर। ऐसे बच्चे हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन टू ए कोर्स दैट इज कंडक्टेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक्स हो या स्कूल्स हो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, या कॉलेजेस हो एफिलिएटेड टू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर कोई ट्रेनिंग पार्टनर हो हु आर एफिलिएटेड टू सेक्टर स्किल काउंसिल या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या स्टेट स्किल मिशन और स्टेट स्किल कॉर्पोरेशन, ये सब एलिजिबल होंगे इसमें।
रीपेमेंट पीरियड, अगर आपने 50,000 का लोन लिया है तो 3 साल में चुका दीजिएगा, बट फालतू की बातें, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू इन दिस मच डिटेल. Recent notification. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh with a guarantee from government promoted fund. ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि 25 स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा हर साल. To assist youth ineligible for government scheme, the government has announced financial support for loans up to 10 lakh for domestic higher education, and each year 1 lakh student will receive e-voucher providing 3% annual interest subsidy on these loans, just like जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड में होता है. Okay, Ministry of Youth Affairs and Sports recognize Kalaripayattu Federation of India for promotion of Kalaripayattu in country. ठीक है, तो कलारीपयट्टू कहाँ का स्पोर्ट्स है? केरल का. इसने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्ट्री ने इंडियन कलारीपयट्टू फेडरेशन को एज अ रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टू प्रमोट कलारीपयट्टू अक्रॉस द कंट्री. ये एंशिएंट मार्शल आर्ट माना जाता है. इनफैक्ट इसको कहा जाता है इट इज मदर ऑफ मार्शल आर्ट. आई थिंक बॉलीवुड में एक एक्टर है, डोंट रिमेंबर हिज नेम, एक कमांडो नाम की मूवी की थी उसने. वो बोलता है कि मैं कोई कराटे एक्सपर्ट वगैरह नहीं हूँ, मैं कलारीपयट्टू हूँ, बचपन से मैंने वही सीखा. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. The practice of Kalaripayattu is believed to originated in 3rd century BC in Kerala. The term Kalaripayattu is derived from two words, the Kalari meaning place of exercise या gymnasium and Payattu means fight or exercise. फाउंडर कौन थे इसके? इसके फाउंडर थे संत परशुराम. The sixth incarnation of Vishnu is said to be the founder. He established 42 Kalari and taught 21 masters of these Kalaris to protect the land of Kerala. Kalaripayattu, a personal combat system, include exercise to develop sharp reflexes for unarmed combat and skillful use of weapon. It is known for its high flying acrobatics, graceful movement. It incorporates deadly weapon with ease. The movement in Kalaripayattu are inspired by mannerism and fighting technique of animals. ठीक है, इसमें कई स्टाइल्स भी होती हैं, जैसे पहला वडक्कन और नॉर्दर्न स्टाइल. सेकेंड इज वडक्कन स्टाइल एम्फेसाइज मोर ऑन ग्रेसफुल बॉडी मूवमेंट एंड दी वेपनरी. नेक्स्ट इज थिकन या फिर सदर्न स्टाइल कहते हैं इसको. ठीक है, दो होती हैं, वडक्कन एंड थिकन. थिकन कलारिपयट्टू या फिर आदुमुरई, इट इज प्रैक्टिस मेनली इन ट्रेवनकोर रीजन, इन्वॉल्व फ्री आर्म टेक्निक्स एंड पावरफुल मूवमेंट. इसकी कई स्टेजेस होती है लर्निंग की. आपने एक बागी मूवी देखी होगी, उसमें दिखाया हुआ है काफी कुछ. The practice of Kalaripayattu is divided into 4 stages. First is Mathri, that is body control exercise. Kolthari, practice of wooden weapon. Ankathari, practice of metal weapon. And Verumkai, bare hand fighting techniques. Aadhaar-based authentication of LPG customers enable better targeting of beneficiaries under Pahal and Ujala scheme. उजाला आपको पता है यहाँ पे फ्री सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती है हमने 12 करोड़ लोगों को दिया. पहल स्कीम थी, गिव अप कैंपेन था ये. ठीक है, यानी कि जिन जो रिच लोग हैं, अच्छे वेल ऑफ फैमिली हैं, उनको उनसे कहा गया था, एक पहल की गई थी कि आप लोग अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए ना, ताकि जरूरतमंदों तक ही पहुंच पाए. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ पहल स्कीम. ठीक है, इट इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड एलपीजी कस्टमर ऑथेंटिकेशन टू इंप्रूव बेनिफिशियरी टारगेटिंग. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता था. एलपीजी की सब्सिडीज को लॉन्च की गई थी 2013 में. बाद में इसको मॉडिफाई करके रीलॉन्च किया गया. किसकी स्कीम थी वो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, गलती से कहीं और मत पहुंच जाना. It aims to reduce subsidy leakage, eliminate duplication, and ensure subsidy reaches, etc. All domestic LPG consumers who have completed the KYC process and linked their Aadhaar card or biometric details, the subsidy amount is directly transferred to consumers' bank account after the purchase. सब्सिडी कितनी मिलती थी? ₹300. ओके, अगेन की फीचर्स क्या थे इसके? सब्सिडी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, मिसयूज और डाइवर्जन रोकना, बेनिफिट रीच द डिजर्विंग सेक्शन. Total participation as of July 24, more than 30 crore LPG customers are enrolled under the PAN scheme. National Mission for Manuscripts. Ministry of Culture, again PIB का न्यूज था ये. The mission seeks to unearth and preserve the vast manuscript wealth of India. Manuscript आप जानते हो, हाथों से लिखी गई है, पुराने पेड़ की बर्च पे लिखी जाती थी. Established कब किया गया था ये मिशन? तो 2003 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. It has mandate of identifying, documenting, conserving and making accessible the manuscript heritage of India. Objective आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नया बताने को नहीं है. Significance, India possesses estimate 10 million manuscripts, probably the largest collection in the world. These cover a variety of themes, texture, aesthetic, scripts, language, calligraphs, illumination, illustration, etc.
पैलियोसेंथस मेगालेनेसिस। ठीक है, ये एक न्यू स्पीशीज मिला है हमें फ्रॉम मेघालय, इसलिए उसका नाम भी उसी पे रख दिया गया। ये एक तरह का रेयर प्लांट है। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड इन बारीचोरा ऑफ गारो हिल्स। इट इज स्मॉल टेरेस्ट्रियल एंड एवरग्रीन हर्ब दैट थ्राइव्स स्पोरेडिकली ऑन स्लोप्स टुवर्ड्स मेघालय। हैबिटाट एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, बोस्ट ऑफ ए ह्यूमिड क्लाइमेट आइडियल फॉर दिस स्पीशीज। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया सब जगह मिलता है। इट इज सिमिलर टू पी पुमिला बट डिफर्स चीफली बाय नॉबी राइजोम ब्रॉडर लीफ ब्लेड्स। ये जैसा कि आप सामने फोटो में देख सकते हैं। इट्स वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स अननोन, प्रॉम्प्टिंग ए प्रोविजनल असेसमेंट और डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा है फिलहाल के लिए आईयूसीएल ने इसको। ठीक है, डेटा डेफिशिएंट, इसके बारे में ज्यादा डेटा नहीं है, वैसे ये पूछे जाने के चांसेस भी कम है इस क्वेश्चन के। इन्वेसिव फास्ट थ्रेटन साउथ अफ्रीकन इकोसिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे इसको पूरा मत जानिए, इसको सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों जो वास्प हैं, जर्मन वास्प एंड यूरोपियन पेपर वास्प, बस ये नेटिव कहाँ का है, क्योंकि इस बार 24 में जो क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने वो नेटिव्स को ही लेके पूछा है। बोथ आर नेटिव्स टू यूरोप, राइट। एंड इसके अलावा सेकंड थिंग इज दैट बोथ आर ओमनिवोरस। राइट, बस ये दो दो चीजें याद रख लीजिए, और दोनों ही इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। Government is implementing dedicated scheme for promotion of organic farming under परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि हम पूरे जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, हम उसको फुली 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, अंडर दिस स्कीम मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बाकी परंपरागत कृषि विकास योजना में तो जैसे अभी हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक में नंबर 1 है, तो जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे हम ऑर्गेनिक कर सकें। ठीक है, अभी रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, द रिसेंटली रिलीज ए रिपोर्ट। नाउ दिस परंपरागत कृषि विकास योजना इज एन एक्सटेंडेड कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इस मिशन के अंडर में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का ही एक कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना। लॉन्च हुई थी 2015 में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट सेंट्रल दोनों को शेयर करना पड़ेगा। इट इज एम्ड एट सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन टर्न रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ टू रिड्यूस। और इससे फायदे क्या होंगे, अगर हम पुराने तरीके से करेंगे खेती तो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का खर्चा बचेगा। थ्रू सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम एनहांसिंग फार्मर्स नेट इनकम पर यूनिट ऑफ लैंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम हैजार्डस इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे अभी हम थोड़े दिन न्यूज़पेपर में हमने कीनिया का एग्जांपल देखा था, राइट, कीनिया, जिम्बाब्वे, इनकी 60 to 70% सॉइल जो है वो पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो गई है ड्यू टू हैवी यूज ऑफ केमिकल्स, राइट। तो इसलिए हमें थोड़ा मिक्स लेके चलना है, केमिकल्स की भी फार्मिंग, केमिकल बेस्ड फार्मिंग भी, बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी, दोनों का मिक्स चलना चाहिए। क्योंकि श्रीलंका ने पूरी तरह से ऑर्गेनिक कर लिया था अपने आप को 100%, उनके यहाँ फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आ गए थे, राइट। By adopting eco-friendly, low-cost, traditional technique and farmer-friendly technologies to produce agriculture products free from chemicals and pesticide residue by adopting eco-friendly, low-cost technologies. Funding pattern 60-40 रखा गया सेंट्रल स्टेट्स में। In case of नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट इट वाज 1910। स्कीम को हमने क्या किया, हमने बनाए 10,000 क्लस्टर ऑफ 20 हेक्टेयर ईच, ताकि हम लोग करीब 2 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर एरिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में ला सकें बाय 2017-18। ठीक है, बट ये हो नहीं पाया था, हमने जब लॉन्च की थी हमने सोचा था हम इतना कर पाएंगे बट कर नहीं पाए। ऑल फार्मर्स विद लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू दिस स्कीम। अब इसी के अंडर में पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम भी बनाई गई थी, जो कि एक तरह से सर्टिफिकेशन का काम करता है कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं। पीजीएस इंडिया फॉर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इट रिलाइज ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लोकल रेलेवेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसी के पास जाके मुझे सर्टिफिकेशन लेना होगा, ये म्यूचुअल ट्रस्ट है एक तरीके का। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना है, मैं बेच रहा हूँ आप खरीद रहे हो, तो हमारे बीच का म्यूचुअल ट्रस्ट है, बस उसी को पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम कहा गया, इन्वॉल्विंग बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। वो जो है पीजीएस इंडिया, वो इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। अब जैसे जो बड़े बड़े लेवल पे जो हो रहा है प्रोडक्शन, उसमें कमर्शियल बेसिस पे, उसमें तो फिर आपको गवर्नमेंट की एजेंसी से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। डू यू नो अबाउट लिस्टीरिया आउटब्रेक इन यूएस कैनेडा? नाउ व्हाट इज दिस लिस्टीरिया एंड लिटरियोसिस? Two separate outbreaks of Listeria have been reported in United States and Canada. It is a type of bacteria found in soil, vegetation, water, sewage, and even the faces of animal and human that can contaminate many foods.
लिस्टीरिया कैन कॉज इंटेस्टिनल इलनेस दैट इज यूजुअली माइल्ड। अब फिर आप अगर ये इन्फेक्टेड फूड खाते हो तो आपको फिर लिस्टारियोसिस होता है। ओके, इनफैक्ट कैसे हो सकता है? रॉ मीट, सी फूड, रेडी टू ईट, प्रोसेस मीट, सी फूड एटसेट्रा में। बाकी की बातें बेकार हैं, कोई जरूरत नहीं। द ट्रीटमेंट इज लाइक वन ऑफ द रूटीन स्टोमक इन्फेक्शन, कोई ऐसा अलग से ट्रीटमेंट नहीं है इसका, एंटीबायोटिक से क्योर हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेस पीसीए फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मैंने आपके साथ काफी टाइम पहले मेंस 450 प्लस में कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड पूरा इशू डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, वहां से इसको देख लेना। बाकी हम इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान को तो देखते हैं। आरबीआई इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क एम्ड एट इंप्रूविंग वीक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। काफी सारे बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है वो लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, काफी में घोटाले भी हुए। तो उसी के लिए ये फ्रेमवर्क रिप्लेस करेगा एग्जिस्टिंग सैफ को, दैट इज सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। अब सैफ की जगह आ जाएगा पीसीए। ठीक है, और ये इफेक्टिव कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से। क्यों डिजाइन किया गया है? टू इंश्योर द टाइमली इंटरवेंशन एंड करेक्टिव मेजर्स फॉर वीक यूसीबी, ताकि ये दिवालिया ना हो जाए। इट फोकस मोर ऑन लार्जर यूसीबी दैट रिक्वायर इंटेंसिव मॉनिटरिंग, देयरबाय ऑप्टिमाइजिंग सुपरवाइजरी रिसोर्सेज। एप्लीकेबिलिटी, इट विल अप्लाई टू यूसीबीज विद डिपॉजिट एक्सीडिंग रुपीज 100 करोड़। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूसीबी को हम लोग 4 टीयर में डिवाइड करते हैं। पहले वो जिनके पास 100 करोड़ तक के डिपॉजिट हैं, दूसरे वो जिनके पास 1000 करोड़ से नीचे के डिपॉजिट हैं, फोर्थ वो जिनके पास 10,000 करोड़ से नीचे के डिपॉजिट हैं, और फोर्थ टीयर वो जिनके पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के डिपॉजिट हैं। तो करेंटली टीयर 1 यूसीबी दैट इज 100 करोड़, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पीसीए फ्रेमवर्क बट विल कंटिन्यू टू बी अंडर एनहांस मॉनिटरिंग। राइट, अभी तक ये जो 100 करोड़ से नीचे वाले इनको एक्सक्लूड रखा जाएगा, बाकी जो ऊपर के हैं उन सबको पीसीए लागू होगा। क्राइटेरिया फॉर इन्वोकिंग पीएसए इफ सीएआर। ओके, जैसे सीआर हमारे यहाँ कितना हम लोग बैंकों के लिए रखा है, हमने सीआर रखा है कि आपको 9% साइड में रखना होगा। अगर ये 9% से नीचे करीब 2.5% नीचे गिर गया तो फिर ये पीसीए इन्वोक किया जाएगा। या फिर आपकी जो नेट एनपीए वो 6% से ऊपर चले जाएं बट अभी भी 9% से नीचे हैं तो पीसीए इन्वोक किया जाएगा। इफ ए बैंक इनकर लॉसेज फॉर 2 consecutive ईयर, अगर 2 साल तक लॉस में जा रहा है बैंक तो भी ये इन्वोक हो जाएगा। इन 3 कंडीशन में ये इन्वोक हो जाएगा। प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। द रिवाइज फ्रेमवर्क अलाउ फॉर एंटिटी स्पेसिफिक सुपरवाइजरी एक्शन प्लान बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। द हार्ड कोडेड लिमिट ऑफ 25,000 करोड़ फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। इंडिया एज्यूम द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर। अब ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, अगेन पीआईबी की ही न्यूज है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर के बारे में जान लेते हैं। इट इज एन ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। ये फोकस करता है कॉपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया पैसिफिक रीजन। ADPC provide training, deploy disaster risk management strategies and work to mitigate impact of natural disaster. फाउंडिंग मेंबर्स हैं इनके इंडिया, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका, थाईलैंड। इंडिया चेयर द 5th बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मीटिंग ऑफ एडीपीसी। ठीक है, ये मीटिंग होगी हो गई है एक्चुअली 25 जुलाई को। ठीक है, बाकी और कुछ काम का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पे। आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, राइट? नहीं, दो और बचे हैं बस, फिर खत्म करते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट डाउन टू अर्थ से ली गई है। ग्लोबल एफर्ट्स कर्ब डिफॉरेस्टेशन बट थ्रेट टू फॉरेस्ट फ्रॉम वाइल्ड फायर्स एंड पेस्ट प्रिवेल। अब वाइल्ड फायर इस साल सबसे ज्यादा कहाँ लगी? हवाई में लगी थी। ठीक है, स्पेन में लगी थी, ये काफी फेमस रही, न्यूज में रही। और हमारे यहाँ भी मोस्टली उत्तराखंड में इस तरह की वाइल्ड फॉरेस्ट फायर्स लगती रहती है। ठीक है, तो ग्लोबल एफर्ट तो करे जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, बट वाइल्ड फायर और पेस्ट अटैक को रोकने के लिए हम फिर भी अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट किसने रिलीज की है? एफएओ ने रिलीज की है। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट कंडीशन एंड ट्रेंड, रिवीलिंग बोथ पॉजिटिव डेवलपमेंट एज वेल एज ऑनगोइंग चैलेंजेस। तो इसकी की हाइलाइट्स देख लेते हैं। देयर इज डिक्लाइन इन डिफॉरेस्टेशन रेट, तो ये अच्छी खबर है। सेवरल कंट्रीज हैव शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कवरेज की बात करें तो एज ऑफ 2020 ग्लोबल फॉरेस्ट कवरेज वर अप्रोक्सीमेटली 4.1 बिलियन हेक्टेयर, दैट इज 31% ऑफ द लैंड एरिया वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। नेक्स्ट इज दैट Brazil, Russia, Canada, US, and China. These are top 5 countries currently accounting for 54% of global forest area.
Australia, DRC, Indonesia, Peru, India. They are about two-third of the global forest area. ठीक है, इतना हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन के ट्रेंड देखें तो इसमें स्लो डाउन हुआ है और ये अच्छी बात है. रीजनल डिफॉरेस्टेशन देखें तो सबसे ज्यादा एज एक्सपेक्टेड अफ्रीका में ही है, क्योंकि जहां सबसे कम डेवलपमेंट है वहीं फॉरेस्ट ज्यादा होंगे. फॉरेस्ट एरिया गेन इन 2020 10 कंट्रीज रिकॉर्डेड एनुअल गेन. ठीक है, इस तरह के पॉइंट्स डिटेल में पूछे गए हैं, पहले पीवाई की सॉल्व कीजिएगा, आप देखेंगे उसमें इस तरह से इन डेप्थ जाके रिपोर्ट के अंदर की चीजें पूछी गई हैं. इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया गेन एंड एनुअल इंक्रीज ऑफ 2,66,000 हेक्टेयर. मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो global mangrove areas were recorded at 14 million hectare, and South and Southeast Asia contribute 44% of the total. हालांकि rate of gross global mangrove loss decreased by 23%, okay, but rate of gain in mangrove area वो भी डिक्रीज हुआ है. गेन भी उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे, हालांकि इनको जो नुकसान हो रहा था वो जरूर थोड़ा सा रोक दिया गया है. एशिया वॉज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ बोथ मैंग्रोव लॉस एंड गेन. Impact of fire, an estimated of 340 million hectare of Earth's land area are impacted by annual fires. अब ये फैक्ट आप अपने प्रीलिम्स के याद रखिए, बट एग्जैक्ट फिगर याद रखना जरूरी नहीं है, बस अंदाजा रखिए कुछ 350-400 मिलियन हेक्टेयर ये इम्पैक्ट हुआ है एनुअल फायर से. Satellite data revealed that total fire in 23 estimated to be 6687 megatons of carbon dioxide globally. एक तरफ हम कार्बन डाइऑक्साइड रोकने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वाइल्ड फायर इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑलरेडी एमिट कर देती है. What is climate finance taxonomy? Now this is last article of the day, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो इस वर्ड को समझ लीजिए. क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी, इट इज अ सिस्टम दैट क्लासिफाइज which part of the economy can be marketed as sustainable investment. ठीक है, यह हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स और बैंक्स को इन चैनलिंग फंड्स टुवर्ड्स इंपैक्टफुल इन्वेस्टमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. इट सेट स्टैंडर्ड फॉर क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट and serve in climate risk management, net zero transition, etc. सभी कंट्रीज ने, कई कंट्रीज ने अपने खुद के टैक्सोनॉमीज बनाए हुए हैं. सिग्निफिकेंस, नेट जीरो इकोनॉमी अचीव करने में मदद मिलेगी, हमें 2070 तक करना है. अलाइनमेंट विद साइंस, ये इंश्योर करता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर अलाइन विद क्रेडिबल साइंस बेस्ड ट्रांजिशन पाथवे. Climate capital deployment, it will encourage the flow of funds towards climate adaptation and mitigation. Greenwashing prevention, ग्रीन वॉशिंग 2022 में यूपीएससी ने पूछा था व्हाट यू मीन बाय दिस टर्म. तो इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, बट उसके बाद भी आप उसको शो करते हो कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है. ठीक है, उसी को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग. तो उसको प्रिवेंट करना भी जरूरी है. उसी तरीके से आजकल एआई वॉशिंग टर्म चल रहा है. एआई वॉशिंग का मतलब ये है दैट आपकी सर्विस आप जो दे रहे हो उसमें एआई का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया वी हैव यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर प्रोडक्ट. ठीक है, इन आवर सर्विस वी ऑफर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस. और इससे क्या होता है, आप कॉस्ट बढ़ा देते हो कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करा है, बट एक्जैक्टली आपने यूज किया नहीं होता है. तो जैसे ग्रीन वॉशिंग था वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉशिंग. कैपिटल अवेलेबिलिटी, इट विल इंक्रीज कैपिटल फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव्स रीडिंग इंडिया इन मीटिंग इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट और ग्रीन ट्रांजिशन गोल. ओके, सो दैट्स इट, वी आर डन विद वीक 4. राइट, ये हम लोग हर मंथ करेंगे ताकि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो हम न्यूज एनालिसिस के साथ डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ ये प्रीलिम्स एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा एज देगा. और एक चीज जो आप में से काफी लोग मिस कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं एमसीक्यू. क्योंकि हम लोग जो वहाँ एमसीक्यू पोस्ट कर रहे हैं उसमें जब आप क्वेश्चन या उसका आंसर में देखिए उसमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, और मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि क्वेश्चन ऐसे बनाए जाएं जो इन दोनों टॉपिक से हटके हो, जो हम लोग न्यूज़पेपर और एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं उसके अलावा एमसीक्यू बनाते हैं, ताकि आपका एक ब्रॉड कवरेज हो सके प्रीलिम्स के लिए. राइट, दैट इज अबाउट प्रीलिम्स. और मेंस के लिए हम लोग मेंस 450 प्लस सीरीज प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग प्लस योर न्यूज एनालिसिस, उसके साथ जो एक्स्ट्रा नोट्स आपको दिए जाते हैं. राइट, ये तीनों चीज आपके मेंस का ध्यान रख रही है. और ऑल दीज थिंग्स कम एट जस्ट 1000 rupees मंथली. Okay, so you can visit the official app of Easy Aspy and you can subscribe the course there. So that's it for this section. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.